Let's turn our Bibles to the book of Ephesians chapter 4 and verse 16. आइए अपने बाइबल में निकालेंगे इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय 16वें वचन में। See what the Bible says over और देखिए बाइबल क्या कहती है वहां पर। From whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share. और वचन कहता है जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य के द्वारा उसमें होता है। This causes growth of the body for the edifying of itself in love. और वह अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। The first point. पहला मुद्दा, It says, the scripture says over here, our whole body is made up of different parts that are joined together and knit together. और बाइबल ऐसा कहते हैं कि हमारा पूरा शरीर जो है एक दूसरे अंग के साथ जुड़ा हुआ है और गठते हुए जाता है। Paul writes, he says, our body is not just one member. He says, our body is composed of different members joined together, knit together. और प्रेरित पौलुस ऐसा लिखते हैं कि हमारा शरीर जो एक अंग के अनुसार नहीं बना हुआ है, हमारा शरीर में बहुत सारे अंग हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं और गठते हुए बढ़ते जाते हैं। Our body is symbolic of, it reflects the body of Christ. हमारा शरीर जो है यह प्रतीक है मसीह की देह का। This is how also it should be in the body of Christ. और इसी तरीके से मसीह के देह में भी होना चाहिए। That's the church. यह है कलीसिया। Each one of us, हम में से हर कोई, we are part of the body of Christ. हम मसीह के देह के हिस्सा हैं। Someone is a ear, someone is an eye, and so forth. और कोई कान है तो कोई आंख, ऐसा ही है। But the fact is, मगर हकीकत यह है we are closely connected to each other. हम एक दूसरे के साथ करीबी संबंध में जुड़े हुए हैं। If we are not closely connected together, if we are not knit together, अगर एक साथ हम करीबी तौर पे जुड़े हुए नहीं है, गठे हुए नहीं है, then the body will not grow in maturity. तो शरीर जो है परिपक्वता में नहीं बढ़ सकेगा। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? If the body does not grow in maturity, अगर शरीर परिपक्वता में नहीं बढ़ता है, it will not fulfill the call that God has placed upon that person's life, upon the body. तो वो शरीर उस व्यक्ति के जरिए उस बुलाहट को नहीं पूरा कर पाएगा जो परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन पर रखा है। The purpose of God will not be established. परमेश्वर का उद्देश्य जो है वो स्थापित नहीं हो सकेगा। What am I saying? और मैं क्या कह रहा हूं? How is it relevant to Karuna Sadan or any church? और कैसे ये करुणा सदन सेवकाई या फिर दूसरे किसी कलीसिया से जुड़ी हुई There है? are many people that attend our services. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी सभाओं में भाग लेते Some हैं of them just come and they just go. और उनमें से कुछ लोग बस आते हैं और जाते हैं। Now this goes on for many years. और ये कई सालों से चलता रहा है। What I've noticed from ministry in all these years और सेवकाई में जो मैंने पाया है is that such people, they have a love for God. और ऐसे लोगों में परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है। They have a certain level of hunger for God. उनके अंदर परमेश्वर के भूख के प्रति एक स्तर होता है। Now because they are not connected to one another in the ministry, in the church, और क्योंकि वो सेवकाई में कलीसिया में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, they are alone. वे अकेले पड़े हुए That हैं love, that hunger starts diminishing, starts dying down. और इसकी वजह से वो प्रेम, वो भूख जो उनके अंदर था वो घटता चला जाता है, मरता चला जाता है They start getting busy in the things of the world. और दुनिया की चीजों में वे व्यस्त होने लग जाते हैं। And because they are not connected, और क्योंकि वो जुड़े हुए नहीं हैं, that flow of the anointing, the flow it's diminished and they just are swept away. और फिर वो अभिषेक जो था वो घटता चला जाता है और क्योंकि वो घटता चला जाता है इसलिए उनकी जिंदगी भी ऐसे ही पड़ जाती है। My friend, if you're watching this, if you're listening to this, और मेरे दोस्तों अगर आप ये देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, I want you to be connected to this ministry. और मैं चाहता हूं कि आप इस सेवकाई से जुड़ I जाएं। want you to be a part of the J12 group. मैं चाहता हूं कि आप J12 जो समूह है उसका हिस्सा बने। And when you're connected, और जब आप जुड़ते हैं, I believe the life of God will just begin to flow from one part to the other and it will cause growth. और फिर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का जीवन जो है एक में से दूसरे में बहता चला जाएगा और आप बढ़ोतरी को देखेंगे। Let me go to the next point. और चलो मैं दूसरे मुद्दे में See जाता what the हूं। scripture says in Ephesians 4. और देखिए इफिसियों की पत्री चौथे अध्याय में क्या कहता है It वचन। says when every part does its share. और फिर ऐसा वचन कहता है जब हर एक हिस्सा जो है सही तरीके से काम करता है, It causes growth of the body. उसके जरिए शरीर में वृद्धि आती है। Most of the time we expect someone else to do his or her part. और अक्सर हम क्या अपेक्षा करते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है अपने किरदार को पूरा करे। We want the choir to sing well. और हम चाहते हैं कि क्वायर की मंडली अच्छे से गाए। We want the volunteers to do a good job. हम अपेक्षा करते हैं कि वॉलंटियर लोग अपना काम अच्छे से करें। We want the parking attendant to do his job. और हम अपेक्षा करते हैं कि जो पार्किंग में जो अधिकारी लोग काम करते हैं वो अपना काम अच्छे से करें। What we don't realize is मगर क्या हम समझ नहीं पाते हैं that we too have a part to play. कि हमें भी अपना किरदार निभाना है। Each one of us has a part to play. हम में से हर एक को अपना किरदार निभाना है। Now just imagine this, और जरा सोचिए that if every one of you कि आप में से हर कोई did their part,
अपने किरदार को no matter निभाएंगे how small that part is, और फर्क नहीं पड़ता कितना छोटा है वो किरदार, what would be the result? तो उसका परिणाम क्या आएगा? I believe मैं विश्वास करता there हूं would be a spiritual explosion. और एक आत्मिक धमाका होगा There would be a mighty revival और एक बड़ी बेदारी आ जाएगी that would bring glory and honor to the Lord. जो परमेश्वर को महिमा और आदर लाएगी। Amen. आमेन। My dear sister and brother, मेरे प्यारी बहन और I भाई, challenge you. आज मैं आपको चुनौती देता हूं, Rise up and do your part. उठो आज और अपने किरदार को पूरा The करें। first thing is you need to be connected. और सबसे पहली चीज ये है कि आपको जुड़े रहना है, And when you are connected with one another, और जब आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, you're part of a J12 group. You have a J12 leader. You're under somebody, and when you do your part, जब आप J12 ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, आपके ऊपर कोई अधिकारी होता है, आप किसी के अधीन में रहकर अपने किरदार को निभाते हैं, I believe मैं विश्वास करता हूं the whole body will grow पूरा शरीर जो है बढ़ेगा and the Lord will be glorified. और प्रभु को महिमा मिलेगी। Amen. आमेन। Let me go to the third point quickly. चलो मैं जल्दी से तीसरे मुद्दे में And आता I'm हूं, reading Ephesians 4:16 from the Amplified Bible right now. और मैं इस समय इफिसियों का चौथा अध्याय 16वें वचन को एम्प्लीफाइड संस्करण में से पढ़ूंगा, It will pull out the context of the scripture so clearly. और इस वचन के संदर्भ को बड़े साफ तौर पर वो दिखाता See है। what it says. देखिए वचन क्या कहता For है, because of him, the whole body, that is the church, in all its various parts, closely joined and firmly knit together by the joints and ligaments. और जिससे सारी देह यानी कि कलीसिया जो है, आगे ऐसा लिखा हुआ है कि हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर, For with which it is supplied when each part with the power adapted to its needs is working properly in all its functions. उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के, हर एक हिस्से के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, It grows in full maturity, और ये पूरी पक्वता में बढ़ती जाती है, building up itself in love. और वह प्रेम में उन्नति करती जाती है। Now listen to this now. अब मेरी सुनिए, When each part is working properly, और जब हर एक हिस्सा सही तरीके से काम कर रहा हो, not just doing the job because you're sake of doing it. और बस इसलिए आप काम नहीं कर रहे क्योंकि आपको करना है, The Bible says each part is working properly in all its functions. Notice that. और देखिए वचन ऐसा कहता है हर एक हिस्सा जो है सही तरीके से अपने कार्य के अनुसार काम करता है, It is then that the body grows to maturity. फिर उसके बाद ही शरीर जो है, देह जो है, अपनी परिपक्वता तक बढ़ती है। See, growth is important, और देखिए बढ़ोतरी ये पाना बहुत ही Growth is महत्वपूर्ण है, good. ये अच्छी बात है, but maturity is crucial. मगर परिपक्वता अहमियत रखने वाली Let me बात put है। it this way. चलिए मैं इस तरह से बताता हूं, Growth implies quantity, और वृद्धि में जो है उत्तमता आती है, but maturity implies quality. मगर हम देखते हैं उसके बाद जो परिपक्व आती है उसमें गुणवत्ता आ जाती It है, implies excellence. और इसमें श्रेष्ठता आती है, This excellence comes when each part does its function properly. और यह श्रेष्ठता तब आती है जब हर एक हिस्सा सही तरीके से कार्य करता है। Then we can impact the 7 mountains of society. फिर उसके बाद हम समाज के उन 7 पर्वतों पर अपना प्रभाव डाल सकेंगे। I urge you, church, और देखिए कलीसिया, मैं आपसे अनुरोध not करता to हूं, just do your job, but do it well. सिर्फ अपना किरदार ही ना निभाएं मगर अच्छी तरह से निभाएं। If you have to listen to correction, you need to listen to correction. अगर आपको किसी सुधार सुनने की जरूरत है तो जरूरी है कि आप सुधार को सुनिए। One place in the book of Psalms it says, correction is like oil. और एक जगह पर भजन संहिता के पुस्तक में ऐसा लिखा है कि सुधार और ताड़ना जो है यह उत्तम तेल के जैसा है। Lord, I welcome correction because you see, if that correction can help me to increase and to do my job well, then I'm going to listen to it. और प्रभु मैं उस सुधार और ताड़ना का स्वागत करता हूं, क्योंकि अगर वो सुधार और ताड़ना मुझे मदद करेगी कि मैं अच्छा कर सकूं जिंदगी में, तो मैं स्वागत करता हूं उस सुधार और ताड़ना का। Just don't come and sit in the service. बस सभा में आकर बैठे मत रहें, You have an important role to play. और आपके पास एक अहम किरदार निभाने की बात है। Oh, Pastor Mike, I do not know what role I have to play. ओ पास्टर माइकल जी, मैं नहीं जानता कौन सा किरदार मुझे निभाना And है, I urge you तो मैं आपसे अनुरोध करता to हूं, meet one of our pastors. हमारे किसी एक पासवान से मिलिए, Just go and talk to them. जाकर उनसे बात कीजिए, Give them your number or whatever, and we will put you somewhere so that you can function in the call that God has called you for. अपना नंबर उनको दीजिए, अपना पता उनको बताइए, ताकि हम आपको किसी टीम में रख सके जहां पर आप परमेश्वर के इस बुलाहट को पूरा कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। One more thing. और एक You चीज, see, when each part does its own special work in the body of Christ, और आप देखते हैं जब हर एक हिस्सा मसीह के देह में सही तरीके से काम करता है, which no one else can do, जो कोई और नहीं कर सकता, the body does not only grow in health,
तो वो शरीर सिर्फ स्वास्थ्य में ही नहीं बढ़ता है, but it grows and is full of love. मगर साथ ही साथ वो अपने प्रेम की परिपूर्णता में भी बढ़ता है। There are no disputes between other body parts. और शरीर के दूसरे हिस्से में कोई ऐसा विवाद नहीं आएगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। You know, there is no pain between the body parts. और फिर शरीर के दूसरे अंगों में कोई दर्द नहीं होगा, There is no competition, there is no strife, और फिर वहां पर कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, because each part क्योंकि हर एक हिस्सा is fulfilling its own special work. अपने विशेष कार्यों को पूरा कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। You see, that's when the body grows, not only matures, it becomes full of love. और यहीं पर हम देखते हैं कि देह बढ़ती जाती है, और सिर्फ परिपक्वता में ही नहीं ये होता है, मगर प्रेम में भी बढ़ता जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So I urge you, church, तो कलीसिया मैं आपसे अनुरोध करता do हूँ, something today. आज कुछ तो कीजिएगा। I'm reading the same scripture now in the Living Bible translation. अब इसी आयत को मैं लिविंग बाइबल संस्करण में से पढ़ता हूँ। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Christ, who is the head of his body, मसीह जो कि अपनी देह का सिर है, the church, कलीसिया, under his direction, उसके मार्गदर्शन में the whole body is fitted together properly, और पूरा शरीर जो है सही तरीके से गठता जाता है fitted together perfectly, और सिद्धता से गठता है, and each part in its own special way helps the other parts. और हर एक हिस्सा अपने विशेष तरीके से दूसरे हिस्से की मदद करता है, Okay, so that the whole body is healthy and growing and full of love. ताकि पूरा शरीर जो स्वस्थ होता जाए और बढ़ता जाए और प्रेम में परिपूर्ण हो जाए। The fifth point I want to bring out is this. और पांचवा मुद्दा जो मैं आपके सामने पेश You करना see, चाहता हूं when वो ये है, each part is doing its own special work, और आप देखते हैं जब हर एक हिस्सा अपने विशेष कार्य को पूरा करता है, he is also helping other parts. वह दूसरे अंगों दूसरे हिस्से की भी मदद करता है। It's like when the hand is doing a good job, तो इसका मतलब यह है कि जब हाथ अपना काम अच्छे से कर रहा it है, helps other parts of the body. तो यह बात जो है शरीर के दूसरे अंगों की भी मदद करती है। It's not only about ourselves. सिर्फ ये हमारे बारे में नहीं है, It's not about just I, me, myself. और सिर्फ ये मैं, मेरे लिए और मेरे ही खातिर, ऐसा नहीं। The very purpose of human life और मानवीय जीवन का मुख्य उद्देश्य is to serve others. यह है कि वो दूसरों की सेवा करे, And one way to serve others is this. और एक तरीका दूसरों की सेवा करने का वो ये है, Is to do whatever is assigned to you in an excellent manner. और आपको वो करना है जो करने के लिए आपको ठहराया गया है, वो भी श्रेष्ठता से। And when I do that, what is assigned to me to be done in an excellent manner, I automatically helps somebody else. तो जो काम करने के लिए मुझे सौंपा गया है, जब मैं उसे श्रेष्ठता से करता हूं तो मैं खुद ब खुद दूसरे की मदद कर रहा I हूं। want you to watch this video. और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें। You know, it's about a sister called Soni Salve. और ये गवाही है, ये वीडियो की में जो गवाही बहन सोनी साल्वे जी की How है, one sister called Eudice was. और फिर कैसे एक बहन यूडिसवास जी ने, She's one of our leaders. वो हमारी एक अगुवा में से है, How when she did an excellent job, जब उन्होंने अपने कार्य को श्रेष्ठता से किया fulfilling what she has been called to do, और जिसे करने के लिए उनको बुलाया गया था उसे उन्होंने किया, when she did that, जब उन्होंने ऐसा किया, it impacted somebody else's life. इस बात ने किसी और के जिंदगी पर प्रभाव डाला। Watch this. देखिए इसे। प्रेज द लॉर्ड। मैं सोनी साल्वे भाईंदर से हूँ। मुझे किडनी का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं कोरोना हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस दौरान सिस्टर वास और उनके बेटे ने बहुत हेल्प की। रिलेटिव नहीं होते हुए भी बहुत मेरी हेल्प की। उनके बेटे ने मुझे ब्लड दिया और ये दोनों करुणा सदन से जुड़े हुए हैं। और मैं दोनों को धन्यवाद देती हूँ। मैं करुणा सदन मिनिस्ट्री को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली हेल्प की। उनके लीडर्स ने मेरे लिए उपवास प्रार्थना किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और प्लस मैं आप सभी को निवेदन करती हूँ कि आप करुणा सदन से जुड़े रहिए और परमेश्वर का आशीष प्राप्त कीजिए। Further on, each part of the body supplies the strength to the other joints or parts. और वचन ऐसा कहता है कि शरीर का हर एक हिस्सा जो है दूसरे अंगों में सामर्थ्य देता है। You know, it's one part of the body, it supplies the strength to the other part of the body. और ये ऐसा है कि जैसे कि शरीर का एक हिस्सा जो है दूसरे हिस्से में सामर्थ्य भेजता है। This means that there is someone who needs your relationship. इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपके संबंध की जरूरत है, They need your input, they're waiting for your input. और उन्हें आपके प्रभाव की जरूरत है। And when you connect, when you do your part well, when you do your share well, it's like, you know, that other part is strengthened in times of sorrow, in times of pain. जब आप अपने किरदार को अच्छे से निभाते हैं, जब आप अपने कार्य को सही अंजाम देते हैं, तो दूसरा हिस्सा जो है वह सामर्थ्य पाता है उस दुख, उस मायूसी से उबरने के I लिए। want you to watch this video right now. और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें इस How वक्त। one simple person, कैसे एक सीधे साधे व्यक्ति ने, a leader, एक अगुवा, you know, he did his part well.
उन्होंने अपने कार्य को अच्छे से किया and he brought strength to that person. और फिर उसके बाद उस व्यक्ति में उन्होंने बल को लाया। Watch this video. इस वीडियो को देखिए, Really bless you. यकीनन ये आपको आशीष पहुंचाएगी। My name is Vinitha Nurani. I am from Mahim. When my grandmother passed away, we didn't know how to get things done, what to do, and how to do. But one of my J12 supervisors, he came to assist us at that moment. He came, he coordinated with the team with Karuna Southern Ministries, and he arranged for everything. And the next day, the funeral service was taken care of, and it was all done in a very nice way. So all thanks to the ministry. I'm so blessed to be a part of Karuna Southern Ministries. I urge all of you to get connected with this ministry. Thank you. God bless you all. The point 6 now. छठवें मुद्दे को, And I'm reading from Colossians 2 verse 19. और मैं पढ़ूंगा इस वक्त कुलुस्सियों की पत्री दूसरे अध्याय उसके 19वें वचन what में। it says. देखिए वचन क्या कहता है। And not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God. और वचन कहता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठते हुए परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। I want you to notice this phrase. It says, with the increase that is from God. और यहाँ पर जो संदर्भ आया उसे गौर करें, वो बढ़ोतरी जो परमेश्वर की ओर से आती है। Now, most of us, we want to have increase in every area of your life. Who's there that doesn't want increase? और हम में से ज्यादातर लोग हम अपने जिंदगी हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी पाना चाहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बढ़ोतरी नहीं चाहता? Now, how can this increase come? और कैसे ये बढ़ोतरी आ सकती है? One of the ways, church, how that increase can come into every area of your life without you breaking a sweat is this. और देखिए, एक तरीका जो आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी ला सकती है बिना पसीना बहाए, वो ये है When we are connected to one another for the purposes of Christ. जब हम मसीह के उद्देश्य के मुताबिक एक दूसरे से जुड़ जाते See हैं। what the scripture says. और देखिए वचन क्या कहता है। He says, when the whole body is knit together, it's nourished, it grows with the increase that is from God. Meaning each part receives an increase. और फिर यहां पर देखिए वचन कहता है, जिससे सारी देह जो है एक दूसरे के साथ गठती हुई जाती है। तो इसके बाद क्या होता है कि पूरे शरीर में पालन पोषण आ जाता है और शरीर जो है बढ़ती चली जाती है। You please listen to me carefully. Don't stay isolated. और फिर ऐसा अकेला जीवन जीने की कोशिश मत करें। You may be been hurt somewhere. और कहीं पर आपने कुछ ठेस खाया हो, Somebody let you down. और किसी ने आपको शर्मिंदा किया हो। That person could have been a believer, a Christian, whoever. वो व्यक्ति भले विश्वासी रहा हो या मसीही रहा हो। It's not time to be disconnected. और ये अलग होने का समय नहीं है। It's not time to be isolated. अपने आप को अलग करने का भी समय नहीं है। You see, have you seen some videos, where you see the lion is chasing the animals and it tries to isolate some person, and then the lion goes for that isolated person. और फिर हम देखते हैं, जब हम वीडियो में देखते हैं तो पाते हैं कि शेर जो है अगर अपने शिकार पर हमला करना है तो उसका पहले पीछा करके उसे अपने पूरे समूह से अलग कर लेता है, फिर अकेले हो जाने के बाद उस व्यक्ति पर, उस प्राणी पर वो हमला करता है। The isolated person never grows. और एक अकेला अलग हुआ व्यक्ति कभी बढ़ेगा नहीं। You see, आप देखते हैं, where there are people, there will be some issues. जहां पर भी लोग हैं वहां कुछ ना कुछ मामले होंगे। But then, in spite of all this, और इन सब के you बावजूद want to stay connected. आपको जुड़े रहने की जरूरत है। You decide to walk in love. आपको फैसला लेना है प्रेम में चलने का। You decide to help out. आपको फैसला लेना है किसी की मदद You करने का। decide to reach out. आपको फैसला लेना है कहीं तक पहुंचने का। You know what happens with this? आप जानते हैं इसके साथ क्या होता है? You see that there is going to be an increase coming into your life. आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी आ रही है। You see, God is not blind. और देखिए, परमेश्वर अंधा नहीं है, He knows. वो जानता है, He sees. वो देखता And है। in spite of all those things, you're still trying to maintain the unity of the Spirit. You're trying to maintain that bond of fellowship. I tell you, increase is coming into your life. इन सब के बावजूद Receive भी it. आप कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा में एकता को बनाए रखें, आत्मा में उस गठन को बनाए रखें, तो बढ़ोतरी आपकी जिंदगी में आएगी। ग्रहण कीजिए। And lastly, I want to say this. और आखिर में मैं कहना चाहता At हूं, Karuna Southern, करुणा सदन, you can get connected in the following manner. I've put that diagram on the screen right now. आप इन तरीकों से आप जुड़ सकते हैं। You have me, and then you have below, you have the pastors.
ऊपर पहले मैं होता हूं, उसके नीचे पासबान होते हैं, Then you have the J12 leaders. फिर उसके बाद आपके J12 अगुए होते हैं, And under the J12 leaders are the members. फिर J12 अगुओं के अधीन में फिर सदस्य लोग होते So हैं। in this way we all can be connected. इस तरीके से हम सब जुड़ सकते हैं। And you see the anointing just not only flow from me to you, but also your prayers, your blessings will all spread across, and definitely something big is going to happen. तो आप देखते हैं कि सिर्फ अभिषेक मुझ में से आप में ही नहीं, मगर आपकी प्रार्थनाएं भी सब में फैलती चली जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि कुछ बड़ा यकीनन आपके लिए It's होगा। like the fragrance that just doesn't stay in one place, it spreads across the whole room. और एक सुगंध जो कहीं किसी एक कोने में नहीं रहेगी, मगर पूरे कमरे में वो छा जाएगी। You know, I was just meditating upon this. I was just studying also. You see, there are churches that are perhaps not so much growing in, functioning in the gifts of the Holy Spirit. और देखिए, मैं इस पर मनन कर रहा था, मैंने ऐसा पाया ऐसी कलीसियां ही हैं जो कदाचित पवित्र आत्मा के वरदानों में ना काम करते हों, But you see, they are still growing. मगर आप देखते हैं फिर भी वो बढ़ रहे हैं, They're still expanding. वो फिर भी फैलते जा रहे हैं। And then I was wondering how. और मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रहा था कैसे, So huge. Such things happening in that church. और बड़ी विशाल कलीसिया, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। You know why? आप जानते क्यों? The secret is उसका रहस्य ये they है, are simply connected to one another. सरलता से बस वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। My friend, मेरे दोस्तों, even as I close, और जैसे मैं अभी खत्म करने I जा रहा हूं, firmly believe मैं पूरी तरह से यकीन करता हूं, that as you get connected to one another in the body of Christ, even in Karuna Sadhana, और जैसे आप मसीह की देह में, यहाँ तक कि करुणा से सेवकाई में भी एक दूसरे से जुड़ते हैं, you will see a great increase in every area of your life. आप अपने जिंदगी के हर एक क्षेत्र में एक बड़ी और महान बढ़ोतरी को देखेंगे। Amen. आमेन। Let me just pray with you. मुझे आपके साथ प्रार्थना करने Can you दीजिए। lift your hands right now? क्या आप अपने हाथों पर उठाएंगे इस वक्त? Yes, begin to pray in tongues. Sekha ba ma kho protha ka जी हाँ, se. अन्य भाषा में प्रार्थना करना Yes. शुरू कीजिए। Begin to शिखारा pray. बाबा Yes, saka मसादा। moha ta ka ba. प्रार्थना करना शुरू कीजिए इस वक्त। Father, I शिखा bring every प्रार्थना। person those who are watching this right now. पिता, हर एक वो व्यक्ति जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें हम आपके That पास लाते हैं God, they would be connected. कि प्रभु ये जुड़ जाएं, They would not be isolated, God. प्रभु ये अलग रहे नहीं, They would be connected to the right person in this service, Lord. और इस सभा में सही व्यक्ति से वो जुड़ जाएं प्रभु। And Father, even as they take that step to be connected, Father, और पिता, जैसे ये कदम उठाते हैं किसी से जुड़ने का, पिता, that Lord, that anointing, that life of Jesus Christ would begin to flow into their lives in Jesus' name. और हम प्रार्थना Yes. करते हैं वो अभिषेक प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है इनकी जिंदगियों में बहने लगे यीशु के नाम में। And I pray, Father, even as they get connected, Lord, और पिता, हम प्रार्थना करते हैं जैसे जुड़ते हैं प्रभु, that they would begin to do, they would begin to fulfill what you have placed on their lives. Yes. तो वे उन Yes. कामों को पूरा करने लग जाएं जो आपने उनकी जिंदगी में रखा है। Yes, Lord, bring it out. हाँ प्रभु, बाहर लाएं। That treasure that is hidden in the earthen vessels. और वे खजाने जो मिट्टी के पात्रों में छिपे हुए हैं, Yes, begin to pray, Holy Spirit, use me. जी हाँ, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा मेरा इस्तेमाल कर। Begin to cry out right now. और प्रभु का पुकारना शुरू कीजिए इस Father, I वक्त। pray, God, that each one would do what he share very well in excellence in Jesus' name. और पिता, हम प्रार्थना Yes. करते हैं हर कोई व्यक्ति जो है अपने किरदार को, Yes. अपने हिस्से को श्रेष्ठता से करें यीशु के नाम में। Spirit of excellence come upon you right now. और श्रेष्ठता की आत्मा आप पर आ जाए इस वक्त। Receive in Jesus' name. ले लीजिए यीशु के नाम में। Hallelujah. Receive हालेलुया। it in Jesus' name. ले लीजिए यीशु के नाम में। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। And Lord, even as they're doing what you have called them to do, Lord, और जैसे प्रभु वो उन कामों को कर रहे हैं जिनको करने के लिए आपने उनको बुलाया है, let them walk in love. और प्रभु होने दीजिए प्रेम में चलें, Let them walk in love. वे प्रेम में चलें। And as they do that, Father, और जैसे ये करते हैं there's पिता, going to be an increase एक बढ़ोतरी आ जाए coming in every area of their lives. इनकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र Be में, it finances, be it relationships, be anything, God is going to give you increase right now. चाहे वो पैसों में हो, चाहे शादी में हो, जिंदगी के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को बढ़ोतरी दे। May your life bring glory and honor to Jesus. आपकी जिंदगी यीशु को महिमा और सम्मान लाए। Hallelujah. हालेलुया। And when one day when you meet the Lord, और एक दिन जब प्रभु से आपकी you मुलाकात hear होगी, these words. आप इन शब्दों को सुनेंगे, Well done, शाबाश good and faithful servant. हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। Amen. आमेन। Please remember to pray for me मेरे खातिर प्रार्थना करना हमेशा याद रखिएगा, and the team. और हमारे दल के लिए भी। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष I दे। love you, okay?